ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ اسلاموفوبیا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ اقوام متحدہ نے 15 مارچ اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا، امت مسلمہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ اسلاموفوبیا کی بڑھتی لہر کے خلاف ہماری آواز سنی گئی۔ اقوام متحدہ نے OIC کی پاکستان کی جانب سے متعارف قرارداد منظور کی اور دنیا کو درپیش سنگین چیلنج کو تسلیم کر لیا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ مسلم امہ کا اگلا چیلنج اقوام متحدہ کی اس قرارداد پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ اور وزیر اعظم نے قوم کو اقوام متحدہ کی قرارداد پاس ہونے کی خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، بیرون ملک پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ اسلاموفوبیا کیا ہے۔ باہر کبھی سر ڈھانپنا ہو تو سڑکوں پر برا بھلا سننا پڑتا ہے، کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا تھا۔ مجھے فخر ہے میں نے اس کے خلاف دنیا بھر میں آواز بلند کی اور آج قرارداد پاس ہوئی۔ نیشنز کے اندر آج ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور ریزولوشن پاس ہوگا اسلاموفوبیا کے خلاف۔ یہ ہماری وجہ سے ہے۔ آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو پتہ ہے اسلاموفوبیا کیا ہے۔ وہ جو آپ باہر رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کئی دفعہ سر کور کیا ہوا ہے اور سڑکوں کے اوپر برا بھلا کو کہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں کرتا تھا آج تک۔ یہ ہم نے، مجھے فخر ہے کہ UN میں OIC میں دنیا میں نے اس چیز کو اٹھایا اور آج انشاءاللہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں ریزولوشن پاس کی جائے گی اسلاموفوبیا کے خلاف۔ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کا مسئلہ اٹھایا۔ دنیا کو باور کرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کہ مسلمانوں کے لیے پیغمبر اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے۔ وزیر اعظم نے بڑے سے بڑے عالمی فورم پر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مسلم ممالک کی قیادت سے بھی بار بار کہا کہ ہمیں مغرب کی غلط فہمیاں دور کرنا ہوں گی۔ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted the Holy Quran burnt, and all this in the name of freedom of speech. There is only one Islam, the Islam of Prophet Muhammad, peace be upon him, which we follow. How painful it is when our Prophet is maligned, mocked, ridiculed. It causes, why does it cause so much pain to us? Because the Prophet lives in our heart. Prophet Muhammad, peace be upon him, lives in our hearts. When anyone insults or ridicules a prophet, it is the most painful thing for Muslims because he lives in our hearts. This country, they would die for the, if anyone said anything to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. There is only one Islam, and that is the Islam we follow of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mocked or ridiculed or insulted, they can't understand the reaction amongst the Muslims. Very important. وزیر اعظم عمران خان کی اپوزیشن پر پھر تابڑ توڑ حملے۔ مولانا فضل الرحمان کو دین فروش قرار دے دیا۔ بولے اپوزیشن نے لوگوں کو پیاز ٹماٹر کی قیمتیں بھلا دی۔ لوگوں نے دیکھا یہ لوگ ملک بچائیں گے تو پھر عمران خان کے ساتھ ڈوب جاؤ۔ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، کپتان کے ٹریپ میں آ گئے۔ صرف عدم اعتماد ہی نہیں، اگلا الیکشن بھی ہاتھ سے گیا۔ اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب میں کہا، نون لیگ کے ایک رنگ باز نے فضل الرحمان کا نام ڈیزل رکھا تھا۔ نواز شریف امریکہ گئے تو گھبراہٹ میں امریکی صدر اوباما کو مسز اوباما کہا۔ اپوزیشن کے لیے طوفان ہیں آپ، پاکستان کے کپتان ہیں آپ، عمران خان ہیں آپ۔ اپوزیشن پارٹیز کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں بھلا دی ہیں۔ ساری قوم نے دیکھا ہے، انہوں نے ملک کو بچانا ہے تو بہتر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈوب جاؤ۔ فضل الرحمان کو ڈیزل نون لیگ نے شروع کیا تھا کہنا۔ نون لیگ کا ایک رنگ باز جس نے فضل الرحمان کا نام ڈیزل رکھا تھا، ہم نے نہیں رکھا۔ نواز شریف وہ جنرل جنانی کے چھتوں پہ سریا لگاتے لگاتے وزیر اعلیٰ بن گیا۔ شہباز شریف ٹوکرے کا پھل لے کے جاتا تھا رشوت دینے کے لیے، وہ اوپر آ گئے۔ زرداری نے ایک جعلی پرچہ دکھا کے وہ بن گیا، اور فضل الرحمان 30 سال سے دین کو بیچ رہا ہے۔
पाकिस्तान का वजीर आजम ओबामा के सामने बैठा हुआ है, काम पे टांग रही है, और जी के नाराज ना हो जाए, वो मेरे मुंह से कोई गलत ना निकल जाए, और गलत क्या निकले कि वो ओबामा को मिसेस ओबामा कह देता है घबरा के। क्या इमरान खान मरीख पर रॉकेट भेजने के लिए वजीर आजम बने, जो कहते हैं कि कीमतें ठीक करने के लिए नहीं आया? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का तंज, कहते हैं हुकूमत जलसा जलसा ना खेले, हिम्मत है तो 172 अरकान पेश करके दिखाए। इमरान नियाजी साहब कहते हैं आटा, टमाटर, प्याज, बिजली, गैस की कीमतें ठीक करने के लिए वजीर आजम नहीं बना, मुरीख के ऊपर रॉकेट भेजने के लिए वजीर आजम के ओहदे पर बैठे थे। इनकी तबाही ने इनके इत्तेहादियों को भी तबाह कर दिया। आपके वजीर इक्तदार बचाने के लिए झूठी खबरें रिलीज कर रहे हैं कि आलमी साजिश हो रही है। आपको कह रहा हूँ इमरान नियाजी साहब, घबराना नहीं है, 172 MNA लेकर आए, जलसा जलसा आपसे खेलेंगे। भी तो MNA खेलने की बात हो रही है। इज्जत बचाना चाहते हैं तो इस्तीफा दें, कौम से माफी मांगे और घर जाएं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। डी चौक पर 10 लाख लोगों का जलसा करेंगे। अदम एतमाद की नौबत आई तो देखेंगे कौन माई का लाल गुजर कर जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। लीगी रहनुमा शाहिर हकान अब्बासी कहते हैं जिस माई के लाल में हिम्मत है, अरकान असम्बली को रोक कर दिखाए। 10 लाख जरूर लाएं, अदम एतमाद नहीं रोक सकते। ये अभी से डर गए हैं। डी चौक में 10 लाख आदमी होगा, जरूर 10 लाख लाएं, लेकिन अदम एतमाद के वोट को नहीं रोक सकते। इस माई के लाल में इतना कलेजा है, लाख वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दे। डी चौक में अपने अपने जलसे मनसूख करें। सीनियर सियासतदान और काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का हुकूमत और अपोजिशन को मशवरा। अपने बयान में कहा कि मुल्क खतरनाक महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहरान का फ़ायदा अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को होगा। सियासी मुसाबकत अफरा तफरी और बहरान पैदा कर सकती है। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि फ़रीक़ैन अपने कारकुनान को इश्तियाल अंगेज़ सियासत का रास्ता ना दिखाएं, हार और जीत को अना का मसला बनाए बगैर वोटिंग में हिस्सा लें। हमें छोटी पार्टी कहने वाले ये भूल गए कि मुल्क के लिए बड़े फैसले किए। आर्मी चीफ की OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास और यौम पाकिस्तान परेड के लिए हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा भारत के हारिसाते करार दिए मिसाइल वाक़े से बड़ी तबाही हो सकती थी। शुरका का कहना था कि भारत की जानिब से गलती के एतराफ़ के बावजूद मुतालिका आलमी फोरम्स को नोटिस लेना चाहिए। ऐसे वाक़यात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को शदीद ख़तरे में डाल सकते हैं। आलमी फोरम्स भारतीय स्ट्रेटेजिक असासों की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पर नज़र रखें। आर्मी चीफ ने लम्स का भी दौरा किया। असातिज़ा और तलबा से गुफ्तगू में कहा दुश्मन गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचा सकता है। टांगें कांप रही हैं और कांपें टांग रही हैं में क्या फ़र्क है? बिलावल भुट्टो जरदारी ने बता दिया। वो क्या कहते हैं आप भी देखें। आपका जोश और जज्बा इस्लामाबाद को हिला रहा है। इस्लामाबाद में कांपे टांग रही है। ये तो PTI का जो जमात है वो वीडियोस को मैनिपुलेट करना और प्रोपेगेंडा करना के माहिर है। मगर जो भी है जैसे भी है, मैं अब उस लफ्ज़ को ओन करता हूँ और अवाम को समझाना चाहूँगा कि टांगे कांपने में और कांपे टांगने में फ़र्क क्या है। टांगे जो कांपते हैं ना, वो वज़ीर आज़म साहब के टांगे कांपने शुरू हो गए थे हमारा मार्च शुरू होने से पहले। और जैसे हमारा मार्च निकला, जब उसने पेट्रोल की कीमतें में कमी की, बिजली की कीमतें में कमी की, तो वो सिर्फ टांगे कांपने तक की खौफ था। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो फिर वो कांपे टांगने वाला सीन शुरू हो गया। और आपने फिर देखा कि दीर में जो जलसा हुआ, जो वेस्ट बिहारी में जलसा हुआ, जगह जगह अब वो गाली देने पे मुझ तक आ गया है। वो अब एक स्टेज से ज़्यादा है। एक खौफ है, एक डर है, फिर उसके बाद जो पागलपन के नज़दीक आप आते हो तो वहाँ टांगे कांपते नहीं, वहाँ आप कांपे टांगना शुरू हो जाते।
यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। MQM और पीपल्स पार्टी का अजब सियासी रिश्ता है। वो जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, आज बाहम शीरो शकर होना चाहते हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूं, ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर। ये शहर हमारा है, तो हम तुम्हें इजाजत देंगे तो तुम यहाँ रहोगे। इंतहाई मुतासिब नस्ल परस्त बदउनवान करप्ट सिंध हुकूमत कराची की आवाम को बेरोजगार और मददगार कर दिया है। MQM और पीपल्स पार्टी का तल्ख माजी। तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो, जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। बिलावल ने MQM को दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट के नाम पे दहशतगर्दों को मुसल्लत किया गया। पुलिस से इख्तियार छीन के सेक्टर कमांडर्स को, दहशतगर्दों को, कातलों को दिया गया। MQM पीपल्स पार्टी को कब्जा ग्रुप कहती रही। जाली डोमिसाइल पर भर्तियों के इल्जामात भी लगाए। ऐवानों में भी, ऑफिसों में भी, दफातर में भी हम तुम्हारी तलाशी लेंगे। तैयार हैं आप लोग? सिंध सेक्रेटेरिएट की तलाशी लेनी है, उनके डोमिसाइल चेक करने हैं। किसी ने करप्ट और नस्ल परस्त कहा। इंतहाई मुतासिब नस्ल परस्त बदउनवान करप्ट सिंध हुकूमत, जिसने पूरे सूबे को तबाह और बर्बाद कर दिया है। तो किसी ने शहरी सिंध के हुकूक गस्ब करने और कराची को पानी से महरूम करने का इल्जाम लगाया। पीपल्स पार्टी की मुतासिब और करप्ट हुकूमत ने पीने के लिए एक कतरा पानी नहीं दिया है। चंद हफ्ते पहले ही MQM रहनुमाओं की वजीर आला हाउस के पुलिस एहलकारों से खातिर तवाज़ो कराई गई। MQM और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, कराची के शहरियों की राय। बाद शहरियों ने तनकीद की कि सियासतदान अपने मफाद के लिए किसी से भी इत्तेहाद कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये मुसल्लत हो जाएंगे हम पे पीपल्स पार्टी, और हम ये चाहते नहीं है। ऑप्शन हम MQM को भी देना नहीं चाह रहे, क्योंकि कोई इनका है नहीं, मुस्तकबिल दिख नहीं रहा है। कि हुकूमत गिरेगी तो यही मुसल्लत हो जाएंगे ना, फिर 2 साल और रुक जाए। इतनी जल्दी काहे की है? क्यों इनकी गर्दनों में पाँव रख दिया उसने? नहीं होना चाहिए इनका इत्तेहाद, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में जब पीपल्स पार्टी की होती थी, जरदारी साहब थे, तो इन लोगों की मुफाहिमत की सियासत की वजह से इस शहर में जो आज हम यहाँ पर बैठे हैं, तो हम अमन व अमान से नहीं बैठ सकते थे। असल में ये इत्तेहाद तो होना नहीं चाहिए। अपने मफाद के लिए जो है ना सबसे मिल जाते हैं। ये PTI का साथ देना चाहिए, इमरान खान का, और ये हुकूमत को रहना चाहिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज कराने वाले की ख्वाब लीग से अपील। अस्पताल से वीडियो पैगाम में परवेज इलाही को मुखातिब करते हुए कहा, आप पर बुरा वक्त था तो इमरान खान ने सहारा दिया और आपके मुकाबले में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। खुदा का खौफ करें, इमरान खान अच्छे काम कर रहे हैं, उसका साथ दें। बुरे वक्त जो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਗਾਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ MP MLA ਬਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ अच्छा काम ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।